ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 73rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਈਅਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947। ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਸੋਫੀਆ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਰਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਫॉर ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਫੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸੰਗ, ਇਸਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਮਸੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਫੋਰਬਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 30th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੋ 176ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਅਨ PSU ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NTPC ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 261ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ CIC ਕੌਣ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਜ਼ਰ ਮਸਤੂਇਨ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਚਾਈਲਡ 6 years old। ਇਸਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ $1000 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਆਰਟਵਰਕ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥਰੂ ਆਰਟ। ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਰ ਮੁਸਤਈਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ $1000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ SCO ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SCO ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ SCO ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ। ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ 2020 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਸੈਰਾ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6th ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੋਰਮ
ब्रिक्स की पार्लियामेंटरी फोरम मीटिंग 6वीं मीटिंग सी ऑर्गेनाइज की गई इंडिया वालों ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइज अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ रशिया की प्रेजिडेंसी के अंडर इसनू ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी। 2020 के जोड़े ब्रिक्स के समिट ने सारे रशिया होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट है लुइस एक्रे सेंटाकोरा इन्हों अपॉइंट किया गया प्रेजिडेंट। बोलीविया के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। बोलीविया जी कंट्री है इसके प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं लुइस एक्रे कैटाकोरा। बोलीविया कैपिटल सुक्रे है। करंसी इत्थे बोलीवियानो चलती है, चलती है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ एट 109th प्लेस। फीफा लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज़ की गई, टॉप किया गया बेल्जियम द्वारा और इंडिया किनवें नंबर पर रहा 109वें नंबर पर। नेक्स्ट है वल्चर कंजरवेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जिस दे अंडर अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगा कि किन्ने स्टेट दे विच वल्चर कंजरवेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लगाए जाएंगे। 5 स्टेट्स दे विच। किहड़ी 5 स्टेट्स दे विच? यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और त्रिपुरा। यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और त्रिपुरा। इस तो इलावा वल्चर्स ने जिहड़े क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट दे विच आंदे ने, IUCN दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट दे विच आंदे ने। तीसरी गल यूपी दे विच कित्थे बनाया जा रहा है वल्चर कंजरवेशन सेंटर? महाराजगंज दे विच। यूपी दे महाराजगंज दे विच वल्चर कंजरवेशन सेंटर बनाया गया। पहला वल्चर कंजरवेशन सेंटर यूपी दे महाराजगंज दे विच। बाकी हजे जो अनाउंस किए जाएंगे वैन्यू उस तो बाद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कबरतल वैटलैंड जिसनों कन्वर झील के नाम नाल भी जाना जाता है, बेगूसराय बिहार दे विच है। अच्छा, बेगूसराय बिहार तो याद आया टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर कित्थे बनाया जा रहा है? बेगूसराय बिहार दे विच। कबरतल वैटलैंड नूं रामसर साइट्स दे विच इंकलूड किया गया है। इसनूं इंकलूड करन दे नाल 39 रामसर साइट्स हो चुकियां ने इंडिया दे विच। टोटल कितनी रामसर साइट्स ने? 39 रामसर साइट्स ने। नेक्स्ट है यूपी द्वारा भोग योजना लॉन्च की गई। यूपी हैज़ लॉन्च भोग योजना। भोग की फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, ताकि जिहड़े प्रसाद वगैरह होंदा भोग होंदा उसनूं FSSAI के अंडर की किया जा सके, रजिस्टर किया जा सके। नेक्स्ट है अ यूनीक इनिशिएटिव प्लास्टिक प्रीमियर लीग एक टूरनामेंट लॉन्च किया जा रहा है, जिस दे अंडर बेसिकली कित्थे किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश दे विच। जिस दे अंडर की किया जाएगा कि जिन्ने भी प्लास्टिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक है पॉलीथीन्स वगैरह ने उन्होंने खत्म किया जाएगा, प्लास्टिक फ्री बनाया जाएगा सिटी नूं। इंदौर दे विच लॉन्च किया गया है PPL प्लास्टिक प्रीमियर लीग। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ कोची मुजुरीस बेनिनियल पोस्टपोन फॉर 1 November 2021 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोची केरला। केरला दे कोची दे विच ऑर्गेनाइज किया जाना सी कोची मुजुरीस बेनियल। इसनूं पोस्टपोन किया गया। इसका किन्नवा एडिशन सीगा? 5th एडिशन सीगा। और केरला ही ऐसी फर्स्ट स्टेट बनी है, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वैजिटेबल्स, या कह सकते हैं कि मिनीमम प्राइस होंदा जिहड़ा वैजिटेबल्स का वह फिक्स किया है कि फार्मर्स की इनकम नूं इंक्रीज़ करने के लिए मिनीमम प्राइस फिक्स किया है कि इस तो घट जी कोई भी वैजिटेबल है उसका रेट नहीं होएगा, जिस नाल फार्मर्स नूं भी बेनीफिट होएगा। ठीक है, पहली स्टेट किहड़ी बनी है? केरला। नेक्स्ट है नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे है 1.8 किलोमीटर फैनी ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, फैनी ब्रिज पूछा जाएगा। 1.8 किलोमीटर है, कनैक्ट कर रहा है सबरूम त्रिपुरा नूं रामगढ़ बांग्लादेश के नाल। सबरूम त्रिपुरा नूं रामगढ़ बांग्लादेश के नाल कनैक्ट कर रहा है, जिसनूं दिसंबर 2020 तक बना दिता जाएगा। ठीक है, फैनी ब्रिज 1.8 किलोमीटर लॉन्ग। फाउंडेशन स्टोन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है स्टैटिक पोर्शन दे विच अर्जुन अवार्ड डिस्कस कर रहे थे आपां। मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग। मनु भाकर और सौरभ चौधरी
2 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਔਰ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ। मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन दोनों ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਔਰ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਮਧੁਰਿਕਾ ਸੁਹਾਸ ਪਤਕਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੀਕਾ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਧੁਰਿਕਾ ਸੁਹਾਸ ਪਤਕਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ। ਦਿਵਿਜ ਸ਼ਰਨ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਵਿਜ ਸ਼ਰਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਧੁਰਿਕਾ ਸੁਹਾਸ ਪਤਕਰ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੰਗਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ 2020। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 27 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 7 ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ 19th ਐਡੀਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ 19th ਐਡੀਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ FAO ਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FAO ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ 70th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। FAO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FAO ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਊ ਡੋਂਗਯੂ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬਾਈ ਵਿਚ ਈਅਰ ਨਾਸਾ ISRO ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰੇਡਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚ ਇਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਫॉर्म ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸਾਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਸਾ ਔਰ ISRO। ਨਾਸਾ ਔਰ ISRO ਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰੇਡਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ISRO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਸੋਫੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਿਮ ਬ੍ਰਾਈਟਸਟੀਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ISRO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ISRO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ISRO ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਅਗਸਤ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। K ਸਿਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਸਾ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੁਪਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਰਨੀਵਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਰਨੀਵਲ NPCI ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NPCI ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੁਪਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਰਨੀਵਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ NPCI 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। NPCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਪਏ NPCI। ਠੀਕ ਹੈ, NPCI ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ
रुपए फैसटिवल कार्निवल यानी कि जो रुपए कार्ड के उत्ते अगर आप यूज़ करते हैं तो उन्होंने की किया जाएगा, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिते जाएंगे। इस तरीके का इनिशिएटिव NPCI द्वारा लिता गया। ठीक है, याद रखना है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। RBI ਨੂੰ 1 अप्रैल 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। RBI ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ। ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 4 ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CII ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਦੇ ਕੋਟਕ। ਉਦੇ ਕੋਟਕ CII ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, who is the author of the book Knights of the Restless Spirits? Knights of the Restless Spirits इस बुक ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਨੇ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ, 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਸਪਿਰਿਟਸ ਇਸ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ, ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਸਮ। ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਸਮ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। GBS ਸਿੱਧੂ, GBS ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ, ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ GBS ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ। SL ਬਰਿਅप्पा, SL ਬਰਿਅप्पा ਦੁਆਰਾ ਕੰਨੜ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਚੂ। ਅੰਚੂ ਬੁੱਕ SL ਬਰਿਅप्पा ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿੰਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਬ੍ਰਿੰਕ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰਹਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰਹਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਟਸ ਸ਼੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਡਰੈਗਨ, ਲੈਟਸ ਸ਼੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਡਰੈਗਨ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰਹਾ ਦੁਆਰਾ। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। डॉक्टर ट्रस्ट एक हैल्थ केयर कंपनी है। इसके ब्रांड एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसके ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नूं डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। अच्छा, रोहित शर्मा की ही गल करते हैं। रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ला लीगा के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ਨੂੰ ਐਡੀਡਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रोहित शर्मा ਨੂੰ ਹੀ रोहित फॉर राइनो कैंपेन, रोहित फॉर राइनो कैंपेन ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रोहित शर्मा ਨੂੰ IIFL ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਿੰਡਮ, ਕ੍ਰਿਕਿੰਡਮ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਿੰਡਮ, ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਓਕਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਔਰ बिल्कुल रिसेंटली आप डिस्कस किया सी वीगा का भी ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए जा चुके हैं रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर की गल करते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया। युवराज सिंह आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए युवराज सिंह। रॉबिन उथापा एंट्री, ਹੁਣ याद होगा एंट्री जॉब लर्निंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एंबेसडर आप डिस्कस किए सी रोहित शर्मा रॉबिन उथापा अपॉइंट किए गए सी। और सौरभ गांगुली बेसिकली 39th नंबर के प्रेजिडेंट ने किसदे BCCI के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट ने सौरभ गांगुली 39th नंबर के। इन्हों JSW स्टील का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। JSW सीमेंट का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। किन्ना दे नाल? इन्हों अपॉइंट किया गया सी सौरभ गांगुली प्लस सुनील चेत्री दे नाल। JSW स्टील के ब्रांड एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए सी? कमेंट बॉक्स में दसने। वो भी क्रिकेटर ने JSW स्टील के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ
1 बिलियन विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए $1 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC। JBIC एक बैंक है जापान का, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म है। इस दे नाल $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है SBI ने। ठीक है, जापान की लोन के रिलेटेड ही दो न्यूज़ ने, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। डिटेल के डिस्कस करते हैं। सब तो पहले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की कराया, लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया JBIC के नाल, किन्ने का $1 बिलियन का। ठीक है, SBI के हैड की गल करिए रजनीश कुमार होंगे सी, इन्हों की टर्म खत्म हुई है, नवे अपॉइंट किए गए हैं दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन ने। SBI के MD की गल करिए अश्वनी भाटिया। इस तो इलावा अच्छा दिनेश कुमार खारा नूं रिसेंटली की अपॉइंट किया गया इंडियन बिजनेस एसोसीएशन का वाइस प्रेजिडेंट भी अपॉइंट किया गया, वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। और वाइस प्रेजिडेंट कह सकते हैं, वाइस चेयरमैन कह सकते हैं। चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी राजकिरण राय। कमेंट बॉक्स के दसना है राजकिरण राय किस बैंक के हैड ने, राजकिरण राय। इस तो इलावा दूसरी जी एग्रीमेंट सी NTPC के नाल है, डिस्कस करते हैं पहले, उस तो बाद ऑप्शन डिस्कस कर लाँगे। NTPC लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है करंसी लोन एग्रीमेंट विद जापान गवर्नमेंट्स फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस फॉर 50 बिलियन येन। वो $1 बिलियन का सीगा। ठीक है, यह 50 बिलियन येन यानी कि 482 मिलियन $, 482 मिलियन $, या कह सकते हैं 3582 करोड़ रुपए किस दे लई, ग्रीन इनीशिएटिव के लिए, या कह सकते हैं ग्लोबल एक्शन फॉर रिकनसिलिंग इकनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन इनीशिएटिव के लिए। ग्रीन इनीशिएटिव के लिए लोन एग्रीमेंट NTPC के नाल साइन किया गया 482 मिलियन का, या 50 बिलियन येन कह सकते हैं। इस तो इलावा SBI ने की किया, $1 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया जापान के नाल। दोनों एग्रीमेंट याद रखने ने जापान के। इस तो इलावा रिसेंटली अगर आप जापान की ही गल करिए, टैक्सटाइल्स के रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड भी एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के रिलेटेड भी जापान के नाल ही एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। एग्जिम बैंक की गल करते हैं, इंडिया वालों दूसरी कंट्रीज़ नूं लोन प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। फॉर एग्जाम्पल निकारागुआ नूं अपॉइंट किया गया सी, मोजाम्बिक नूं, मालदीव्स नूं काफ़ी लोन इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है, क्यूबा नूं लोन प्रोवाइड किया गया सी। ये कंट्रीज़ के नाम याद रखने ने, प्लस इन्हां दी कैपिटल्स और करेंसी। फॉर एग्जाम्पल निकारागुआ कैपिटल मानागुआ है। ठीक है, क्यूबा कैपिटल हवाना है। मालदीव्स कैपिटल माली है। ठीक है, इस तरीके नाल सारी कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी भी याद रखनी है। यस बैंक लोन ओवर सिक्योरिटीज़, लोन इन सेकेंड्स, ये दो इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यस बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है। इसके जोड़े हैड ने फर्स्ट वूमेन हैड अपॉइंट किए गए सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हों का नाम दसना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट वूमेन हैड अपॉइंट किए गए सी, इन्हों का नाम दसना है कमेंट बॉक्स के विच। नेक्स्ट है हू हैज़ वोन डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसने जीते है, जिसनों दिता गया नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया द्वारा दिता गया है फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन मलेरिया पैरासाइट्स लाइफ साइकिल। मलेरिया की जो पैरासाइट है उसके लाइफ साइकिल की रिसर्च के उत्ते डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड दिता गया। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसनों दिता गया, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर सतीश मिश्रा। थर्ड ऑप्शन डॉक्टर सतीश मिश्रा नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, डॉक्टर सतीश मिश्रा डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस दे विच डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नवानी, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नवानी दोनों नूं आपां डिस्कस किया सी कल्पना चावला अवार्ड। कल्पना चावला अवार्ड जिहड़े आपां अवार्ड डिस्कस किए सी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के अवार्ड, ISA के जिहड़े अवार्ड डिस्कस किए सी रिसेंटली की किया कि इंडिया नूं ISA का दोबारा प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया।
प्लस वाइस प्रेजिडेंट फ्रांस ਨੂੰ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੀਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। प्लस ISA ने अपने 3 कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, कल्पना चावला विश्वेश्वरैया अवार्ड और तीसरा अवार्ड की सी कमेंट बॉक्स में भी दसने। प्लस विश्वेश्वरैया अवार्ड दिता गया जापान नू, कल्पना चावला अवार्ड भी जापान और नीदरलैंड नू दिता गया सी विश्वेश्वरैया अवार्ड। कल्पना चावला अवार्ड है जिहड़ा भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनवानी नू दिता गया सी। ऐश्वर्या श्रीधर की गल करते हैं, इन्हों रिसेंटली फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया सी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हों दिता गया, ऐश्वर्या श्रीधर। इंडिया के फर्स्ट वूमेन बने सी डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीधर। लाइट्स ऑफ पैशन इमेज के लिए इन्हों की। नेक्स्ट है सेकेंड मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मीटिंग हेल्ड की गई। दूसरी मीटिंग सी यह, यानी कि सेंट्रल एशिया इंडिया दी और एशिया का सेंट्रल हिस्सा सेंट्रल एशिया की जी मीटिंग सी, जिस दे विच उजबेकिस्तान तजाकिस्तान इस तरीके की कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने दी चेयरमैनशिप के अंडर इंडिया के एस जयशंकर दी, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि राज्य सभा MP ने गुजरात तो, इन्हों की चेयरमैनशिप के अंडर इस मीटिंग नूं हैल्ड किया गया। RK सिंह की गल करते हैं, RK सिंह आप डिस्कस किया हुआ काफ़ी बार। RK सिंह पावर मिनिस्टर ने, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, और RK सिंह आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्ट्री इन्होंने लवे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री प्लस रेलवे मिनिस्ट्री, इंपोर्टेंट है रेलवे मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं ये राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। प्लस इन्हों रिसेंटली 2 मिनिस्ट्रियां होर दित्तियां गई सी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। राम विलास पासवान की डैथ हो गई सी, इन्हों दी मिनिस्ट्रियां भी पीयूष गोयल नूं दित्तियां गईयां सी। मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने गुजरात तो। इन्हों के रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पीयूष गोयल आप डिस्कस किया कल कि SCO का स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज किया पीयूष गोयल ने। प्लस डिस्कस किया कि ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग भी इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया ने होस्ट की ट्रेड मिनिस्टर की 19वीं मीटिंग, 19th मीटिंग ऑफ SCO फॉरेन इकनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग किसने होस्ट की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा इसनूं होस्ट किया गया। मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने, मनसुख लाल मंडाविया इन्होंने डायरैक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी नूं लॉन्च किया, DPE डायरैक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी नूं लॉन्च किया किथे, चिदंबरम पोर्ट के उत्ते। चिदंबरम पोर्ट कितने तमिलनाडु दे विच अंडर मैरीटाइम विजन 2030। मैरीटाइम विजन 2030 का मतलब की है कि इस दे विच अनाउंस किया गया कि 2030 तक जिहड़ा शिपिंग डिपार्टमेंट है इसनूं काफ़ी ज़्यादा बेहतर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिता जाएगा। इस विजन के अंडर DPE एंड फैसिलिटी लॉन्च की गई है चिदंबरम पोर्ट के उत्ते। चिदंबरम पोर्ट की वैन्यू याद रखना है तमिलनाडु दे विच है। क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा जाएगा कि चिदंबरम पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। इस सिमिलर तरीके नाल कांडला पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। पारादीप पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। कांडला गुजरात दे विच है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा दे विच है। इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ बोस्टन। सब तो पहला बोस्टन कित्थे है, बोस्टन USA दे विच है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ बोस्टन ऑर्गेनाइज किया गया। तीसरा एडिशन सीगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी नूं दिता गया। बेसिकली इन्हां दी डैथ हो गई सी, ओम पुरी नूं पोस्ट डैथ तो बाद दिता गया यह अवार्ड, इन्हां दी वाइफ नूं दिता गया। आपां याद रखना है ओम पुरी नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया तीसरे एडिशन दे विच, किस दे, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ बोस्टन दे। इस तो इलावा ऋषि कपूर और इरफान खान, ये भी 2 ऐसे परसन ने जिन्हों की इसे साल डैथ हुई सी। ऋषि कपूर और इरफान खान काफ़ी इंपोर्टेंट और अच्छे कलाकार से।
अमिताभ बच्चन की गल करते हैं। अमिताभ बच्चन नूं रिसेंटली आरबीआई द्वारा ट्विटर कैंपेन का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। अमिताभ बच्चन नूं ही एलेक्सा एमाजोन की एलेक्सा का भी वॉइस एग्रीमेंट साइन किया गया सी वॉइस दे लई, अमिताभ बच्चन की वॉइस दे लई। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने और इन्हां दे नाम के उत्ते पोलैंड की किहड़ी सिटी वोरकलो सिटी ने की किया है, स्ट्रीट रखी है हरिवंश राय बच्चन। परेश रावल नूं नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैड अपॉइंट किया गया सी, चेयरमैन अपॉइंट किया गया सी। नेक्स्ट है विद विच कंट्री इंडिया साइंड एग्रीमेंट। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया किहड़ी कंट्री दे नाल ऑन फाइनैंशियल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल फाइनैंस टू बूस्ट जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट इन बोथ कंट्रीज। बेसिकली इंडिया ने एक कंट्री दे नाल एग्रीमेंट साइन किया ताकि फाइनैंशियल सर्विसेज दे लई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि की होएगा जॉब्स इंक्रीज होणगियां प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी दोनों कंट्रीज़ दे विच। इस एग्रीमेंट नूं यूके दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। यूके दे प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन, याद रखना है। रिसेंटली इंडिया ने यूके दे नाल वाटर पार्टनरशिप के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया सी। यूके की गल करते हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच COP26 समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूके की ही गल करते हैं तो 2022 बर्मिंघम यूके दे विच कॉमनवैल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएगियां। यूके दे नाल इंडिया की एक्सरसाइजिज की गल करिए, अजय वॉरियर, कोंकान और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर, कोंकान और इंद्रधनुष, ये 3 एक्सरसाइजिज इंडिया यूके दे नाल कंडक्ट करता है। यूके के फाइनैंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इंडियन ओरिजिन ने नाम याद रखना है। महात्मा गांधी के लिए कॉइन रिलीज़ किया गया सी यूके दे विच। ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने यूके रिलेटेड। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले अच्छा, सऊदी अरेबिया रिलेटेड न्यूज़ फॉर्म के नहीं, एक सिंपल न्यूज़ सी, ज़्यादा डिटेल के डिस्कस नहीं करांगे, सिंपल चीज़ है डिस्कस कर लें कि सऊदी अरेबिया ने एक मैप रिलीज़ किया। सोनू याद होएगा G20 के रिलेटेड आप डिस्कस किया सी कि G20 की जिन्नी भी मीटिंग्स इस साल दी ने 2020 दी ने कौन होस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। ठीक है, 2021 दियाँ इटली होस्ट करेगा और 2022 इंडिया होस्ट करेगा। तो G20 के लिए सऊदी अरेबिया ने एक मैप जारी किया, सारी जिन्नी भी G20 के कंट्रीज़ आंदियां ने उन्हां दे मैप दे विच पाकिस्तान ने की किया सी रिसेंटली जिहड़ा गिलगिस्तान और बलोचिस्तान जिहड़ा एरिया है ये अपने एरिया दे विच दिखाया सी। जूनागढ़ हो गया, गिलगिस्तान बलोचिस्तान हो गया, इन्हों पाकिस्तान ने आपदे इलाके में दिखाया सी, हालांकि यह इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने जिहड़ा मैप जारी किया है G20 कंट्रीज़ का, उस दे विच यह हिस्सा इंडिया का दिखाया है, पाकिस्तान का नहीं दिखाया। ठीक है, बस ये इन्नी न्यूज़ थी, ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं डिस्कस करांगे। बाकी कंट्रीज़ रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया बांग्लादेश के नाल। एयर बबल एग्रीमेंट आप डिस्कस किया सी कि डायरैक्ट फ्लाइट्स, एयर बबल एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर इंडिया तो और बांग्लादेश के विच एग्रीमेंट है तो इंडिया तो डायरैक्ट बांग्लादेश तो फ्लाइट जाएगी और बांग्लादेश तो डायरैक्ट इंडिया के विच जाएगी। कई बार की होंदा फ्लाइट्स नूं रीरूट किया जाता है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होंदा है तो फ्लाइट्स नूं रीरूट किया जाता है, वो नहीं किया जा रहा। एयर बबल एग्रीमेंट के अंडर इस डायरैक्ट फ्लाइट्स जांदियां ने। मालदीव्स के नाल, इस तो इलावा होर भी काफ़ी कंट्रीज़ ने जिन्हां दे नाल इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक फैक्ट के रूप में, बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करंसी टका चलती है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने याद रखने। नैक्सट है इटली के नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। इटली इंडिया की कोचिन शिपयार्ड ने इटलीज फिनकेटेरी के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। कोऑपरेशन इन द एरिया लाइक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर, शिप्स की बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इटली के नाल। क्वेश्चन डायरैक्ट याद रखांगे, इटली के नाल एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, इंडिया की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नैक्सट है यूएसए की एक एथलीट ने क्रिश्चियन कॉलमैन नूं बैन किया गया डोपिंग चार्जिस के लिए वाडा द्वारा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का हैडकुआटर मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच है। पहले तो याद रखना है वाडा का हैडकुआटर कित्थे है, मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच,
और क्रिश्चियन कोलमैन USA ਦੇ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਥਲੀਟ ਨੇ, USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੋਪਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2021 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਕਾਲਡ ਸੁਮੰਗਲ। ਸੁਮੰਗਲ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ। ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਮੰਗਲ। ਸੁਮੰਗਲ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉੜੀਸਾ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਮੰਗਲ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੜੀਸਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋ ਵਿਦਯੁਤ ਪੋਰਟਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੰਦਾ सम्मान ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੰਦਾ सम्मान ਸੂਜਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਬਲਰਾਮ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਟਰਾਈਬਲ ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ। ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ, ਪੀਠਾ ਸਕੀਮ, ਸਮਰਿਧੀ ਸਕੀਮ, ਕਾਲੀਆ ਪੀਠਾ, ਅੰਮਾ ਘਰੇ LED ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ। ਮੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋ ਕਲਿਆਣ, ਮੋ ਜੀਵਨ, ਮੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਔਰ ਸੂਰਜਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਅਵਾਰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਔਰ ਸੂਰਜਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। MP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਪਦਮਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ MP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਨੈਣੀ ਲੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਣੀ ਲੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ UNDP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ UNDP ਦਾ। ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਸਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਸਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਔਰ UT, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर एंड अटल इनोवेशन पार्क, इसका मतलब की है बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इंडिया नू आत्मनिर्भर और डिफेंस के जोड़े इक्विपमेंट्स ने बाकी कंट्रीज़ नू बेचण दे लई यह डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर कित्थे बनाया गया, तमिलनाडु दे विच। डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ नू। इस पहले तमिलनाडु के रिलेटेड अगर आप डिस्कस करिए कुछ पुरानी स्कीम्स, तो मुद्रा योजना की इंप्लीमेंटेशन दे विच टॉप किया सी तमिलनाडु ने, ठीक है, याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तमिलनाडु दे विच लॉन्च की गई सी। तमिलनाडु के नमक्कल दे विच, ये इंपोर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु के नमक्कल दे विच पोल्ट्री रिसर्च सेंटर ओपन किया जा रहा है। पोल्ट्री रिसर्च सेंटर तमिलनाडु नमक्कल। हुण इंपोर्टेंट है तमिलनाडु की जी न्यूज़ है, डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कि जो डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर है एक कोयंबतूर, तमिलनाडु के कोयंबतूर दे विच लगाया जा रहा है और यह दूसरा डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। पहला जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट सीगा उत्तर प्रदेश के विच लगाया गया सी 2018 दे विच, यूपी दे 2018 दे विच, और 2019 दे विच निर्मला सीतारमन जो फाइनैंस मिनिस्टर होंदे सी 2019 दे विच इन्हां ने दूसरा डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट तमिलनाडु दे विच इनोग्रेट किया सी। उस दे अंडर ही यह डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया गया।
दूसरी तमिलनाडु के रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ सी कि यंग एडवोकेट वैलफेयर फंड पहले डिस्कस की हुई ਆਪਾਂ ਨੇ इस स्कीम ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ फाइनली लॉन्च ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि यंग एडवोकेट वैलफेयर फंड ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। एप्पल ग्रोवर्स नूं सबसिडी प्रोवाइड करवाने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।